ایک مرتبہ ایسا ہوا، اس نے جو خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا تھا، انا رب القم الاعلیٰ، وہ کہتا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، میں تمہیں پالتا ہوں، پوری رعایا اس کے قبضے میں تھی، تو سارے لوگوں کی کھانے پینے کی اخراجات، ساری چیزوں کو وہ بادشاہ سنبھالتا، تو وہ یوں کہتا میں تمہارا رب ہوں، کوئی اور نہیں۔ اب اس کی سرکشی طغیانی بہت زیادہ بڑھ گئی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ فرعون نے خواب میں دیکھا، خواب میں اس نے یہ دیکھا کہ ایک ستارہ آسمان سے ٹوٹ کر اس کے محل میں گرا اور اس کا محل اس کی آگ سے جل گیا۔ خواب میں دیکھا، وہ گھبرا گیا، صبح کاہنوں کو بلایا پوچھنے کے لیے خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے، تو ایک بڑے نجومی نے کہا ان قریب تمہاری سلطنت میں بنی اسرائیل میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو ہلا کر رکھ دے گا، تمہاری بادشاہت کو ختم کرنے کا وہی سبب بنے گا۔ تو اس نے اس بات کو یقیناً طور پہ لے لیا اور پھر علمی طور پر میدان میں یوں اترا، اعلان کر دیا کل سے جو بھی بچہ پیدا ہوگا اسے زندہ نہیں رکھا جائے گا، لڑکا پیدا ہو تو قتل کر دیتا، لڑکیاں پیدا ہو تو زندہ چھوڑ دیتا، کیونکہ خواب کی تعبیر میں نجومیوں نے بتایا تھا کوئی ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوں جب بھی ہوا احینا اشتینا نساءہم، بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا اور بیٹیوں کو چھوڑ دیتا، خوف تھا اس کو، تو یہ قتل کا سلسلہ جاری رہا، جو بھی لڑکا پیدا ہو جائے مار ڈالو۔ ایک سال میں اس نے 12,000 بچوں کو قتل کیا کہ کہیں میری سلطنت کو ہلاک کرنے والا پیدا نہ ہو جائے۔ یہ کرسی کا غرور ہی ایسا ہوتا ہے، کرسی کا نشہ ایسا ہی ہوتا ہے، یہ وہ سوچتا ہے میری سلطنت کو کبھی زوال نہیں آنا چاہیے، کبھی بھی اس میں پرانا پن نہ آئے۔ انسان جتنا بھی کوشش کر لے، جب یہ بات مکمل طور پر معلوم ہو تو انسان کو غرور و تکبر میں نہیں، اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہوئے عاجزی سے زندگی گزارنی چاہیے۔ رب تعالیٰ کے حضور تم جتنا کرو گے اتنی پکڑ ہوگی، اور وہی بندہ مولا کی بارگاہ میں یہ کہے، بلکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس کو اللہ تعالیٰ نے کل کائنات کا اختیار کر کے بھیجا اور خزانے پورے آپ کو دے کر بھیجا، وہ رسول جب اللہ کی بارگاہ میں یہ کہتے ہیں قلت ہوئی لذی، اے مولا میرے پاس اسباب کچھ بھی نہیں ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں جب یہ کہتے تھے وَفَّ قُوَّتِي وَأَحَنِّ النَّاسِ أَشْكُو إِلَيْكَ، یا اللہ، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں یوں عرض کرتا ہوں میں قوت میں بہت کمزور ہوں، لوگوں میں میری طاقت نہیں، جبکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں سب سے زیادہ طاقت دیا ہے۔ یہ ہمارے لیے حرص تھا نبیوں کے نین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے کہ بندے کو چاہے کچھ بھی ملے وہ مولا کے حضور اکڑ اور غرور نہ دکھائے، ورنہ اوندے منہ گرا دیا جائے گا۔ فرعون یہی چاہتا تھا کہ کوئی میری سلطنت کو ہلاک کرنے والا نہ آئے۔ 12,000 بچے قتل ہو گئے، لیکن مولا کو جو کرنا ہے وہ ہو کر رہے گا، کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ سال ایسا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں حاملہ تھی، حمل سے تھی، اب یہ بنی اسرائیل کے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا جب ولادت کا وقت قریب آیا تو ان کی ماں ڈرنے لگی، کیا ہوگا اگر لڑکا ہو گیا، مجھے تو فرعون کے فوجی قتل کر ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات القا کی۔ القا کہتے غیب سے اللہ کی طرف سے کوئی چیز ہدایت میں مل جائے، آپ کے دل کو بھی اللہ نے اتنا پاورفل بنایا کہ یہ سچ اور جھوٹ کو پہچان سکتا ہے، بغیر کسی کے سکھائے بھی کچھ چیزیں ویسی ہی معلوم ہو جاتی ہے، تو سمجھ لینا یہ من جانب اللہ، اللہ کی طرف سے ملی ہدایت ہے۔ قضا اوقات آپ بھی دیکھتے ہوں گے کئی مرتبہ، کیا آپ کو ایسا ڈیسیجن لینا رہتا ہے، آپ کو تجربہ نہیں پھر بھی آپ صحیح ڈیسیجن لیتے ہیں، یہ کسی کی طرف سے اللہ کی طرف سے ملتی ہے ہدایت۔ دل کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے، اور القا جو کہتے ہیں اللہ نے اپنے محبوب بندے کو اولیاء کو غیب سے دل میں بانٹ ڈالتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں خانے میں چلی گئی نیچے انڈر گراؤنڈ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، پیدا ہوئے اور اب خوف ہوا کہ لڑکا ہی ہوا ہے، ان کی ماں ڈر گئی، چھپانے لگی، کیا کرے اب؟ چنانچہ فرعون کی پولیس ہر جگہ گھومتی رہتی تھی،
कहाँ कौन पैदा हुआ है, क्या है। तो ये खौफ करने लगी तो अल्लाह ताला ने दिल में एक और बात डाली, वह औ ऐना इलाउम मूसा अना रदी आई वही खिफ्ती अलैहि फलकी ही फिलियम। ए मूसा की माँ दूध पिला दे और डर लगता है तो फिरौन से एक संदूक में रख करके पानी में बहा दे। मूसा अलैहिस्सलाम का जो वतन है वो मिस्र है, जहाँ तक की तारीख में बताया जाता है दरियाए नील में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने मूसा अलैहिस्सलाम को एक पेटी में रखकर लकड़ी के संदूक में रखकर बहा दिया। कौन माँ ये कर सकती है पैदाशुदा बच्चे को, लेकिन रब की तरफ से उन्हें हिदायत मिली, बहा दिया। अल्लाह फरमाता है, सुबह के वक्त मूसा की माँ के दिल में बहुत बेचैनी हुई और अगर उसके दिल को तसल्ली और ठारस न देते तो फिर वो घबराहट की शिकार हो जाती। फिर हजरत मूसा की माँ मूसा अलैहिस्सलाम की बड़ी बहन अपनी बेटी को कहती, देखो बेटी तुम संदूक देखते जाना कहाँ जा रहा है, बहा तो दिया है मैंने, मुझे ऐसे सारे मिल रहे अल्लाह की तरफ से, मैंने पानी में छोड़ तो दिया है, जरा देखती हुई चली जा कहाँ जा रहा है। वकाल युक्ति ही कुस्सी ही पीछे पीछे चलो। अब वो देखती हुई चली गई। उनकी बहन ये संदूक बहते बहते फिरौन के महल के किनारे जाकर लग गया। फिरौन का महल और उसका बगीचा उस दरियाए नील से लगा हुआ था। जाहिर सी बात है बड़े लोग सीवीयू की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं। रहने को सिर्फ चाहिए हमको समुद्र के करीब, ताकि डूबने के लिए आसानी हो। फिरौन ने भी नदी के किनारे अपना बंगला बनाया हुआ था और महल उसका वहीं था। बगीचे में इत्तेफाक देखे कि फिरौन को औलाद नहीं थी, बच्चे नहीं थे। फिरौन की बीवी आसिया वो अपनी कनीजों के साथ टहलने के लिए बगीचे में आई तो ये संदूक बगीचे के किनारे लगा हुआ है। निहायती हसीन और जमील बच्चा उसमें खेल रहा है, जिसे किसी चीज की परख नहीं, फिक्र नहीं। फिरौन की बीवी थी आसिया, कहा कि ये क्या बह के आया है, उठा लाओ। उठा करके लाई। ये बहुत ही हसीन और जमील बच्चा था तो इनको ऐसा लगा इसे ले लेना चाहिए, तो वो लेकर अंदर आई और फिर फिरौन के पास लाकर बताती है, ये बच्चा बहता हुआ आया है। तो उसे पहले से टेंशन थी। उसने कहा, ये बच्चा तो नहीं जो हिलाक करने वाला है। कहा नहीं, ये तो पता नहीं नदी में बहता हुआ कहीं से आया है। वकालती इमरता फिरौन कुर्रता अय्यनिल लिवक। ए फिरौन, मारो मत इस बच्चे को, तेरी और मेरी आंखों की ठंडक बन सकता है, इसको हम बेटा बना लेते हैं। फिरौन बेगम की मोहब्बत में कहा, ठीक है जैसा आप कहती है, बेटा बना लेते हैं। बेटा बना करके रख लिया। मूसा अलैहिस्सलाम को कौन फिरौन ने अपने घर में, अपने शाही महल में। उसके बाद अब दूध पिलाने की बात आई। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन देख रही थी ये सारी चीजें कि अब मेरा छोटा भाई, नन्हा भाई उठा लिया गया है, महल में जा चुका है, अब क्या होगा। अब मूसा अलैहिस्सलाम की कैफियत देखे, दूध पिलाना भी तो है, बच्चे की परवरिश करना है तो किसी का दूध पकड़ नहीं पा रहे थे। बड़ी बड़ी दाएं बुलाई गई। बादशाह ने खूब इनाम देने का वादा किया, बड़ा अज्र देने का वादा किया। मूसा अलैहिस्सलाम दूध नहीं पी पा रहे थे तो उनकी बहन देख रही थी। उसने कहा कि मैं एक ऐसे घर को जानती हूँ, वो दाया का दूध शायद ये पी ले। कहा कि ठीक है ले आओ। सबको तो हमने बुलाया। वो जल्दी गए और अपनी माँ को लेकर आई और कहा कि ये भी अच्छी दाया है, बच्चे इसका दूध पी लेते हैं। बच्चा इसका दूध पी लेते हैं। तो इनकी माँ मूसा अलैहिस्सलाम की माँ फिरौन के महल में आई थी। मूसा अलैहिस्सलाम को उठा के जैसे ही दूध पिलाया, दूध पीना शुरू कर दिया। फिरौन ने कहा, सही निशाना लगा, अब इसको मुंह मांगा इनाम भी दिया जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को उजरत भी दे रहा था और परवरिश के खर्चे भी और इनाम भी। ये है मेरे रब की कुदरत का सहाका। जब वो किसी की हिफाजत करना चाहे तो गुलाब को जिस तरह कांटों में रखकर बचाता है, इसी तरह अल्लाह अज़्वाजल ने अब ये देखा। ऐसे ही अगर देखना है किसी चीज को अल्लाह बचाता है किस तरह से, तो दांत हमारे जिस्म में है, हमारे मुंह में। किसी को काटो तो कैसे कट जाए, हर चीज इससे कट जाती है। खाने पीने की चीजें प्लस
अगर दूसरे का हाथ काटना चाहे तो कट सकता है, लेकिन साथ ही इन्हीं 32 दांतों के बीच में नरम मुनाजिब जुबान रहती है, कभी उससे नहीं कटती। बुजुर्गों ने फरमाया ये भी रब तबारक व ताला की कुदरत का साहकार है, तुम्हारे मुंह में है कि जुबान 32 के बीच में रहकर भी कटती नहीं, जल्दी उनसे क्यों। अल्लाह तबारक व ताला का कुदरती निजाम है कि वो सख्तसील लोगों के बीच में भी नरम लोगों की हिफाजत कर लेता है। ऐसे ही मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को फिरौन के घर में रखा गया। उनकी माँ का दूध पी रहे, किसी और का नहीं। अब फिरौन के घर में इनकी परवरिश होती रही बड़े नाच के साथ। अल्लाह फरमाता है, हमने मूसा को उसकी माँ तक वापस लौटा दिया। हाँ कई, क्योंकि फिरौन की आंखों की ठंडक नहीं, उनकी माँ की ठंडक हो जाए, और ताकि मूसा की माँ जान ले अल्लाह जो वादा करता है बिल्कुल हक होता है। अल्लाह फरमाता है, मूसा की माँ घबराई हुई थी, पहले बच्चे को डालूं या नहीं डालूं। अब अल्लाह फरमाता है, तुझे तेरा बच्चा सही सलामत लौटाया, और अल्लाह फरमाता है, हम उसे रसूलों में से बना देंगे। अल्लाह की जात पर यकीन करने वाले अल्लाह बेहिसाब अता फरमाता है। यहाँ यही तो बात। अब चलो हम बच्चों को नहीं डालेंगे समुद्रों में, नदियों में। रब ताला फरमाता है कि जो अल्लाह की राह में एक दिराम खैरात करे 700 गुना बढ़कर, ये कुरान पाक में है। वो माँ थी रब के हुक्म पर बच्चे डाल दी, आज एक सिक्का नहीं डाल सकते। फिर कौन सा हमारा ईमान है, कौन सा यकीन है हमारे अंदर। हमारे पास माल की मोहब्बत, औलाद की बात नहीं कर रही हूँ। हमारे सामने से झोलियाँ घूमती रहती है, हमें फर्क नहीं पड़ता चंद लोगों को छोड़ के। और वैसे ही हम अपने पेट की गजालत निकालने के लिए बाहर खूब पैसे भी देते हैं, हर जगह हम देते हैं, लेकिन अल्लाह की जात पर यकीन क्यों कम है। हमारा इन्वेस्ट जैसे हर जगह करते हैं, इसमें भी कुछ इन्वेस्ट करना चाहिए। अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में कोई चीज अमानत दे दो, वो अल्लाह ताला ऐसे तुम्हें लौटाएगा। दुनिया में खुद उसने लौटाया। मूसा की माँ घबरा रही थी, बच्चा समुद्र में बहाने से हमने उसके दिल को तसल्ली दी और ऐसी जगह उसे लौटाया कि बेटा तो लौटाया ही, लेकिन फिरौन की तरफ से खूब इनाम भी अता करवाया, इज्जत भी अता करवाई। सारी चीजें मेरे अजीजों, रब ताला की जात पर यकीन रखो। अब परवरिश हो रही थी। मूसा अलैहिस्सलाम की 1 साल के कुछ हुए थे। 1 साल में चलने फिरने लगे, थोड़ी बहुत बातें होने लगी तो फिरौन और आसिया बैठे थे दस्तरखान पर। तो मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के करीब जाकर जोरदार तमाचा मार दिए। छोटे से थे, गाल पर जैसे पड़ा हाथ। आज तक इस बादशाह को किसी ने आंख उठा के नहीं देखा था, और एक बच्चे ने मार दिया। हाय आसिया, मुझे तो लगता है यही बच्चा है जो मेरी सल्तनत को हिला करने वाला है। यही बच्चा लग रहा है। आसिया ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो छोटा है, न समझे। बच्चे इस तरह से प्यार में करते हैं। नहीं, ये प्यार में नहीं किया है। इसके थप्पड़ की जो जरब है मुझे अलग लग रही है। इसकी मार, इसकी जाहिर सी बात है, पड़ती है तो पता चलता है मोहब्बत में मारा है कि नफरत में मारा है। यकीनन वो अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम जानते थे, और नबियों में अगर देखा जाए वो जलाली पैगंबर है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हो भी सकता है इन्होंने फिरौन को पहचान करके मारा है, लेकिन परवरिश का मामला था। अब आसिया और फिरौन में टकरार होने लगी। वो बार बार कहता रहा, ये बच्चा जानबूझकर मारा। आसिया ने, ऐसा करते हैं इसका टेस्ट लेते हैं, इम्तिहान लेते हैं, इसका जानकर है कि नहीं। एक बर्तन में आसिया ने फूल मंगवाए, एक बर्तन आग मंगवाई, सुर्ख लाल रंग के आग के कोयले मंगवाए। दोनों बर्तन रखे गए फिरौन को दिखाने के लिए। आसिया ने कि अगर ये बच्चा समझदार है तो फूल उठाएगा, और नहीं समझता तो आग उठाएगा, क्योंकि बच्चे उम्मुल लाल चीज को पसंद करते हैं। तो दोनों जब रखे गए, मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह के नबियों को अल्लाह माँ के पेट से ही समझ अता करता है, उनको कोई चीज़ सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब दोनों चीज़ें रखी गई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा गया, उठाओ इनमें से कुछ। वो आगे बढ़ते आए। फूल तो उठाना ही था जो समझ है, लेकिन अल्लाह ताला ने जिब्रील आमीन को भेजा, ए जिब्रील जाओ
मूसा का हाथ आग में डालो। मूसा अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ के जिब्राइल आमीन अलैहिस्सलाम ने आग के बर्तन में डाल दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आग का कोयला उठाया, मुंह में रखा, जिससे जल गया थोड़ा। ये सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला उस जालिम को मात देने के लिए, शिक्कत देने के लिए, उसकी समझ पर पर्दा डालने के लिए। और अल्लाह जब चाहे किसी की भी विसारत को ख़त्म कर दे, अकल को ख़त्म कर दे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, खुली होती है, लेकिन अल्लाह जब समझ छीन लेता है तो समझ में भी नहीं आती। तो फिरौन ने कहा, ये तो बच्चा बड़ा ना समझ है, आग और फूल को नहीं पहचानता। हो सकता है गलती में ऐसी मोहब्बत में मारा होगा। इसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने आग अपने मुंह में ही रही। उसकी वजह से आपका मुंह जला था। जिंदगी भर थोड़ी सी आपको उसकी तासीर बाकी रह गई, यानी अकलाहट। खुद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के अल्फाज कुरान में है, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दुआ किया करते थे। खैर, अब जब जवानी आई, मूसा अलैहिस्सलाम की महल में परवरिश होकर जवान हुए। उनकी माँ ने उन्हें सब बता दिया कि हम बनी इस्राइल से हैं, इस तरह से मैंने तुझे पाला है और अल्लाह का तेरे ऊपर एहसान है। मूसा अलैहिस्सलाम पर रब ताला की मोहब्बत गालिब आती गई और उसके बाद वो फिरौन के महल से निकले। फिरौन को कुछ अंदाजा सा होने लगा। हल्की हल्की बातों में देखते हैं, जब भी घर में कोई बच्चा अलग फिक्र ले लेता है तो वालिदैन को मालूम होने लग जाता है। एक टीवी से तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन शहर के बाहर आए। एक फिरौन के खानदान वाला और एक मूसा अलैहिस्सलाम के खानदान वाला दोनों लड़ रहे थे। एक बनी इस्राइल और एक कौमे अमालेक का से, यानी फिरौन के खानदान वाला जो था, दोनों लड़ रहे थे। अल्लाह फरमाता है, ये मूसा अलैहिस्सलाम के खानदान वाला पुकारा, देखो मूसा ये फिरौनी है, ये मार रहा है, फौजियों में से था। फिरौनी मुझे मार रहा है, बचा लो बचा लो। मूसा अलैहिस्सलाम गए, वो भरे जवान थे, छुड़ाया तो वो फिरौनी अकड़ दिखा रहा था। अल्लाह फरमाता है, एक घूसा आपने लगाया तो वो मर ही गया, फिरौनी मर गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहली मर्तबा आपने घूसे से वो सामने वाले को मारा। एहसास किया, अरे ये तो गलत हो गया, ए अल्लाह मुझसे ये चीज़ हो गई, तू माफ़ फरमा दे। ये जो काम हुआ था मूसा अलैहिस्सलाम से आपने छुड़ाने के लिए मारा था, वो मर ही गया। हदीस पाक में कयामत के दिन सारी मखलूक जो सिफात के लिए घूमेगी, ना आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएगी, ना नूह अलैहिस्सलाम के पास आएगी। सब अंबिया क्या कहेंगे, जाओ किसी और के पास। जब मूसा अलैहिस्सलाम के पास पूरी कौम पहुँचेगी, तब आप कहेंगे, ए लोगों, मेरे हाथ से एक आदमी मर गया था। अगर मैं तुम सबकी सिफारिश करूं, अल्लाह मुझसे वो काम पूछ ले क्यों किया था। मुझे डर लग रहा है, मैं सिफारिश नहीं करूंगा। जाओ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस चीज़ को याद करेंगे। हमारी तो कितनी चीज़ें हैं, क्या क्या है। उन अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम से कोई गुनाह हो ही नहीं सकता। जो हुआ वो भी अल्लाह की मर्जी से हुआ। उसके बावजूद उन्हें खौफ इतना है, पता नहीं रब ताला हमारे साथ क्या करेगा कयामत के दिन। और यहाँ चोरी भी है, मक्कारी भी है, अय्यासी भी है, यारी भी है, 70 गुनाह है, लेकिन खौफ है वही एक गायब है। क्या अल्लाह के हुजूर हमारे बारे में क्या सवाल होगा। खौफ गायब है। मूसा अलैहिस्सलाम ने मार दिया, वो मर गया, पता नहीं चला। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दूसरे दिन उसी जगह पर जा रहे थे। आज फिर उनके खानदान वाला फिर आज किसी से लड़ रहा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, गलती तो इसी के अंदर लगती है। कल इसी ने जो मुझे मदद के लिए बुलाया और खामोखा उसे मारा तो वह मर ही गया। आज इसके आगे बढ़ने लगे। मूसा अलैहिस्सलाम फिर आज वो मदद के लिए पुकारने लगा, तो मदद नहीं, आज मैं तेरा ही काम करूंगा। वो चिल्लाने लगा, ए मूसा, कल जैसे तुमने एक का कत्ल किया, आज मुझे मारोगे। और उनसे बच बचा के भाग गया। कहा गया, सीधे जाकर फिरौन के महल में सब बता दिया। मूसा जो है बनी इस्राइल है और मैं भी बनी इस्राइल का हूँ। ये कौम ही ऐसी है, धोखेबाज, दगाबाजी इनके अंदर है। आज जो यहूदी है वो उसी में से है। जाकर के उसने उसे बताया, मूसा ने कल एक फिरौन को मारा है और आज मुझे मार रहा है। तब फिर फिरौनी ने कहा, मूसा को गिरफ्तार करके ले आओ। तो एक मूसा अलैहिस्सलाम का दोस्त था,
साथ ही अच्छा था वो जा कर के मूसा अलैहिस्सलाम से कहता है, ए मूसा, फिरौन का पूरा लश्कर तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए आ रहा है, तुम जल्दी से निकल जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारे लिए भलाई का खासगार हूँ। जल्दी मूसा अलैहिस्सलाम उस दिन से वो शहर छोड़कर निकल गए। बहुत सफ़र किया आपने, सफ़र इतना लंबा कि मदाइने पहुँच गए। एक दूसरा शहर मदाइन मुल्क के शाम में भी बताया जाता है, इराक में भी, मतलब जहाँ पर भी है वहाँ पहुँचे तो वहाँ एक वाक़या अल्लाह बयान फरमाता है। एक कुएं पर बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी हुई थी। मूसा अलैहिस्सलाम देखते खड़े, प्यास थी। वहाँ पर दो लड़कियाँ, जवान लड़कियाँ पीछे खड़ी थी। ये जा करके उनसे पूछते, क्या हुआ? हम पानी लेना चाहते हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा होने की वजह से नहीं ले पा रहे हैं। हमारे बाप बूढ़े हैं, उम्र दराज है, पर हमें पर्दे की वजह से इस भीड़ में नहीं जा रहे। मूसा अलैहिस्सलाम जवान ताकत भर थे। आपने डोल डाला और उन दोनों को पानी निकाल करके दे दिया। ख्वातीन की मदद इस्लाम सिखाता है, औरतों की मदद अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम अमाल से मिलती है। जब उन्होंने पानी लिया तो कहने लगी, चलो हमारे बाप के पास कुछ उजरत दिला देंगे, तुम मुसाफिर लगते हो, वो तन्हा आए हैं। मूसा अलैहिस्सलाम उनके पीछे पीछे चले गए। वो दोनों लड़कियां अपने घर ले आई तो उनके घर पहुंचने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा वो बच्चियां, वो लड़कियां जिनको वो अपना बूढ़ा बाप बता रही थी, वो दर हकीकत सैयद शुएब अलैहिस्सलाम है, अल्लाह के नबी थे। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम, उनकी उम्र हो चुकी थी। मूसा अलैहिस्सलाम जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने अपना पूरा वाक़या बयान किया। मेरे साथ क्या क्या हुआ, कैसे मैं फिरौन से बचकर आया। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, कोई बात नहीं, तुम मेरे पास रहो, यहीं पर रह जाओ, मैं तुम्हारी हिफाजत करूँगा। अब उन बच्चियों ने कहा, लड़कियों के इसको कुछ उजरत दे दो, अब्बा जान इसने पानी निकाल कर दिया है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम कहते हैं, उजरत दूं, पर मैं ये चाहता हूँ मेरी दो बेटियों में से किसी एक को निकाह में दे दूँ। तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी एक बेटी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से निकाह करवा दिया। ये हुई आपकी अज़दावाजी ज़िंदगी भी शुरू हुई। लेकिन मेहर क्या रखा आपने। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चूँकि खाली हाथ आए थे, कुछ माल लेकर नहीं आए थे, तो शुएब अलैहिस्सलाम ने, मेरी बेटी का निकाह तो करा रहा हूँ, क्या दूँ? कहा, मेरा बगीचा है, उस बगीचे की खिदमत करो। 8 साल खिदमत करना तुम्हारी मेहर होगा, और अगर 10 साल करते हो तो ये तुम्हारी तरफ से है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तैयार हो गए। यहाँ तो मेहर माफ़ करा लेते। अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम का मेहर 10 साल खिदमत करने के बाद पूरा होता है। मेहर तो कानूनी खुदाबंदी है, अल्लाह का कानून है। इसमें जो भी जेरो जबर करने की कोशिश करता है, दर हाथी जिना की ख्वाहिश करता है। जिसने भी मेहर की तरफ से डाबन डोल रखा, उसने अपनी बीवी के साथ जिना किया। ये हदीस पाक में साबित है। मेहर या तो इतना बांधो फौरन अदा कर सको, या तो फिर अगर हो सके तो कमा करके देने की। और जैसे कि एक सिंपल सी बात है, औरतों को आज हमारे यहाँ रिवाज है, सोना देते हैं, शादियों में तो जेवर दिया जा रहा है, शादी में उसको मेहर क्यों नहीं बना लेते, ताकि वो औरत का ही हो जाए। उसके मेहर में लिया हुआ और यहाँ दूल्हा देता है 6 महीने के बाद, फिर अपने बिजनेस में लगाने के लिए, फिर उधार ले लेता है। बीवियों का सोना लेकर जो गिरवी लोग रखते हैं, निहायती नहुसत का काम है। ये समझ लो उल्टी गिनती हो जाती है। ये कभी मत करो। हमारा अपना एक फ़कीरा मशवरा है, मेरा एक फ़कीराना मशवरा है, कभी भी अपनी तिजारत में औरत के माल को लेकर न करें, इसलिए कि तुम्हारी तमाम चीज़ों की बरकतें उठा ली जाएगी, क्योंकि वो बादिले नखासत देती है। यानी उनकी पोजीशन ये होती है कि अगर ना दे तो क्या करे, इसके अलावा चारा क्या है। मेरे अजीजों, अल्लाह ने तुम्हें मर्द बनाया, कुव्वत अता की है, हाथ अता किए हैं, कमाओ और खुद भी खाओ, उन्हें भी खिलाओ। इसमें सवाब भी है और बरकत भी है, खुशहाली भी है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 10 साल खिदमत किए उनके बगीचे में, उसके बाद अपनी बीवी को लेकर निकले। कहाँ? फिर वापस मिस्र आने के लिए। अब देखते हैं फिरौन की क्या हालत है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा जाओ,
अब तुम फिर दोबारा मिस्र जाओ। अब बीच में रास्ते में देखिए नबूवत आपको जब दी गई थी उसका वाकया अल्लाह फरमाता है, आग लेने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ पर गए थे तो अल्लाह ने आपको नबूवत का ताज पहनाया और विसालत भी अता की, नबी भी, आप रसूल भी। दो चीजें अल्लाह ने मोजिजा के तौर पर दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक लकड़ी लेकर चलते थे। हमेशा अल्लाह ने पूछा, ए मूसा ये तुम्हारे हाथ में क्या है? हजरत मूसा कहने लगे, ए अल्लाह ये मेरा आसा है, इसको लेकर चलता हूँ, बकरियां इससे हाँकता हूँ और कभी टेक लगा लेता हूँ और भी बहुत सारे काम इस लकड़ी से करता हूँ। अल्लाह ने फरमाया, ठीक है जमीन पर उसे डालो। मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन पर छोड़ दिया तो वो खौफनाक सांप बन गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पीछे हट गए। रब ने फरमाया, डरो मत, पकड़ लो उस सांप को जैसे आपने पकड़ा, लकड़ी हो गया। ये मूसा अलैहिस्सलाम का मौजूजा था। अल्लाह ने आपको ये दिया। और फिर दूसरी चीज क्या दी? क्या आप जेब में हाथ डालते हैं, हाथ बाहर निकालते, आपकी हथेली इतना चमकती कि रात में भी उजाला हो जाए, यानी हीरे से ज्यादा चमक। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दो मौजूजा थे, ये देबेदा, ये आसा। आसाए मूसा, अल्लाह ने फरमाया, अबे लेकर चलो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र में आए। फिरौन को भनक लगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहले उसको कहते थे, मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं अल्लाह की तरफ से भेजा गया हूँ। तुम जो लोगों की इबादत करवाते हो अपने लिए, इसको ख़त्म करो और उस रब पर ईमान लाओ जिसने तुझे भी पैदा किया, मुझे भी पैदा किया। फिरौन ने कहा, मूसा तू मेरे घर में पला है, देखते नहीं मैं बड़ा रब हूँ सबका, मैं कब से पाल रहा हूँ, तुम ये कौन सी चीज़ें लेकर आए हो? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर दावतें जारी रखी। फिरौन ने कहा, तुम्हारे हक होने की क्या अलामत है? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे अल्लाह ताला ने गैब से कुछ ताकतें अता फरमाई, मैं वो तुझे दिखाऊंगा। फिरौन ने कहा, ऐसी ताकत मेरे पास बहुत है। मूसा ने कहा, ले आओ, तुम्हारी जितनी ताकत है जमा करो, मेरे मुकाबले में सबको ले आओ। फिरौन ने अपने जमाने के सारे जादूगरों को जमा किया, कहा मूसा का मुकाबला करना है। सब जादूगर आए, बड़े बड़े जादू करने वाले। जादू क्या होता है मैं आपको बताऊं, कुरान में इसका जिगर है। जादू होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं इस पर बिलीव नहीं करता, मैं इसको नहीं मानता हूँ। कुरान में इसका जिक्र जादू हकीकत में नज़रबंदी को कहते हैं, यानी किसी भी चीज को छुपा करके पेश करना लोगों के ऊपर। मिसाल के तौर पर ये कुछ पेड़ की डंडियां है। अभी अगर जादू करने वाला कोई ये कहे थोड़ी देर आग बंद करके खोलो, तुम्हें ये फूलों की डंडियां नजर आने लगेंगी, हकीकत में वो अंदर से वही होती है। ये तुम्हारी नजरों को धोखा दिया जाता है। जादू दर हकीकत शैतानी इल्म में से है, तो शैतान की पूजा करने वाले जादू करते आज भी होता है। वो सारे जादूगर मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम क्या दिखाना चाहते हो? तो वे छोटी छोटी रस्सियां लेकर आए थे। कहा कि मूसा तेरे पास बड़ी ताकत है, हम बहुत सारी चीजों की हकीकत तक बदल देते। कहा ठीक है दिखाओ। उन्होंने अपनी रस्सियां मैदान में डाली, वो सब के सब सांप लौटने लगे। इतने सांप के मैदान भर गया। सबके पास रस्सियां जो थी सब डाली। मूसा अलैहिस्सलाम को रब ने फरमाया, ए मूसा तुम भी अपना आसा डालो, अपना लकड़ी डालो। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा डालते हैं तो ये बड़ा अजदा मुंह खोला। वो सारे सांप के बच्चे चले गए मुंह में, सब निकल गया। वो एक ही सांस में सब खा गया। पकड़ लिया आपने, कहा और डालो, और कुछ है तो वो सब कांपने लगे। इसलिए कि तफसीरे में बुजुर्ग फरमाते हैं, मुफस्सिर साहिर रहमत यार खान नईम रहमतुल्लाह अलैह उनको मालूम था रस्सियाँ खा गया और थोड़ी देर खड़े रहेंगे तो हमको भी खा सकता है। जल्दी से उन्होंने कहा, हम ईमान लाए हारून और मूसा के रब पर, हम तुम्हें अल्लाह के नबी मानते हैं, नहीं मुकाबला करना है। फिरौन जिनको मुकाबले में लाया था वो सब के सब मूसा वाले हो गए, मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ आ गए। क्यों जानते हैं, फन वाला हकीकत को जानता है, जादू करने वाला जादूगर के सामने ही तो दोनों ही जानते हैं। दोनों को हम बेवकूफ़ बना सकते हैं। इधर एक जादूगर है, उधर एक जादूगर है, दोनों चीज़ों को अलग अलग करके दिखाए, लोगों को नजर आ रहा है। जादूगर को तो मालूम है ये चीज क्या है, लेकिन यहाँ जो मैदान में हो रहा था, जो जादूगर ने रस्सियाँ जो डाली थी
ان کی نظر میں تو رسیاں تھی، پبلک کو نظر آ رہا تھا، صاف تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو اثر ڈالا تھا جادوگر کی نظروں میں صاف ہی بنا ہوا تھا۔ یعنی موجودہ جادو میں یہ فرق ہے، جادو نظر بندی کو کہتے ہیں، موجودہ حقیقت کی تبدیلی کو کہتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دستہ مبارک ہاتھ سے جو پانی نکلا یہ حضور کا معجزہ ہے یا نہیں؟ یہ صرف آنکھ بند کرنے کا کام نہیں تھا، نظر بندی نہیں تھی، بلکہ جو صحابہ موجود تھے انہوں نے پانی پیا بھی، اپنے جانوروں کو پلایا بھی۔ معجزہ جو ہوتا ہے وہ ریئل ہوتا ہے، جادو صرف نظر بندی۔ اب میاں بہت سارے جادوگر آپ کے پاس آتے، کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ دیکھنا چاہتے ہیں؟ تو ڈبہ ہلا کے سونے کا سکہ نکال کے دکھایا، نکل جاتا ہے، یوں ٹک ٹک مارے تو چاندی کا سکہ نکل جاتا ہے۔ ہم نے بھی بچپن میں دیکھا ہے، اب یہ دماغ میں آتا ہے کیا طاقت ہے اس کے پاس، چاندی کبھی بھی نکال سکتا ہے، سونا کبھی بھی نکال سکتا ہے، پھر روڈ پر بھیک بھی مانگتا ہے۔ یہ کیسا جادوگر ہے؟ وہ روز اپنے لیے ایک ایک سونے کا سکہ نکال کیوں نہیں لیتا؟ خود ہی اپنا محل کیوں نہیں بنا لیتا؟ اسی لیے معلوم ہے وہ حقیقت نہیں ہوتی، وہ صرف لوگوں کی نظروں کا دھوکہ ہوتا ہے۔ بھائی وہ گلاس سے کبوتر نکالتا ہوتا ہے، دیکھا ہوگا آپ نے بہت سارے میجیشین کبھی کچھ نکالتے ہیں، کبھی مرغی نکالتے ہیں، یہ بھی دیکھا گیا۔ اب جب اسکولوں میں کالجوں میں رواج بن گیا، جادوگر کو بلاتے ہیں، ان کے پاس کچھ ہوتا نہیں لیکن کہیں سے بھی کبوتر نکالتے ہیں، مرغی نکالتے ہیں، تو دماغ میں بھی چیزیں نہیں آتی آپ کو کہ کئی بیٹھ کر کے مرغیاں نکال کر کے فارم تیار کیوں نہیں کرتے؟ کم سے کم مرغیاں بیچ کر تو گھر چلے گا، اس کا کبوتر اڑا کر کچھ پیسہ کما لیتے۔ نئی جو چیزیں دکھاتے وہ نظر بندی حقیقت نہیں ہوتی۔ موسیٰ علیہ السلام پر سارے مان لائے، فرعون کا غصہ اور تیز ہوا، اس نے کہا اب ہم مار دیتے ہیں، لیکن اللہ کا عذاب فرعونیوں پر آیا، کئی طرح کے عذاب آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں آخرت کی طرف آتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ تم اپنے ایمان والوں کو لے کر نکل جاؤ مصر کے کنارے طور سینا کی طرف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے اپنی فوج کو لے کر، بیچ میں سمندر آتا ہے، اللہ نے حکم فرمایا اپنا عصا اس پہ مارو، ایک لکڑی ہے کام کتنے کرتی ہے، کیا کیا کام ہے، سارے لوگوں سے مقابلہ بھی اسی کا کام ہے۔ اللہ کے نبیوں کے ہاتھ سے جو چیزیں لگ جاتی ہے اس کی عظمت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر اپنا عصا مارتے ہیں 12 راستے جاری ہو گئے، سوکھے راستے سمندر پر۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اہل ایمان امتیوں کو لے کر نکل پڑے، فرعون اپنے لشکریوں کو لے کر مقابلے کے لیے آیا تھا، اس نے کہا موسیٰ کے پیچھے چلو، پکڑو اس کا۔ کسی طرح وہ اپنی فوج کو لے کر سمندر میں وہیں راستے میں ڈالا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے سمندر کو جیسا تھا ویسا ملا دیا، سمندر میں وہ ہمیشہ کے لیے اپنی پوری فوج کے سمیت غارق ہو گیا، ہمیشہ کے لیے مر گیا۔ کس چیز سے مرا؟ اللہ نے اس کو پانی سے مارا، جبکہ پانی کی کوئی حیثیت نہیں سمجھی جاتی، بہت ہلکی چیز ہے، لیکن جب اللہ اسے جوش دیتا ہے یہی پانی کبھی سونامی بن جاتا ہے، یہی پانی کبھی فرعون کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چھوٹی طاقتوں کو بھی جب چاہے وہی قوت عطا کرتا ہے۔ میرے عزیزو، موسیٰ علیہ السلام اس فرعون سے نجات پا کر اپنی پوری قوم کو لے کر میدان سینا کی طرف آئے۔ بہت سارے موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہیں، ان میں سے جو چیزیں سیکھنی ہے وہ یہی ہے۔ فرعون کی زندگی جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے رام دہ بارگاہ کیا، بلکہ کئی سالوں کے بعد سمندر نے بھی اور اس کی لاش کو باہر اٹھا کر پھینک دیا، اور اس کی لاش جہاں جہاں رکھی جاتی اڑ جاتی تھی، نہ قبر میں کہیں پر بھی نہیں، تو اٹھا کر کچھ لوگوں نے جو ممی بناتے ہیں اس کو رکھ کے کئی سالوں بعد وہاں سے نکال مصر والوں نے میوزیم میں رکھا ہے۔ مصر میں کائرو سٹی ہے، ایجپٹ میں، وہاں پر ابھی بھی نمائش کے لیے رکھا۔ بیچارے مصری لوگ مردے کو دکھانے کے لیے 1000 پاؤنڈ لیتے ہیں، 1000 روپے قریب یا 800 کے قریب کچھ ہو جاتا ہے، ان کو دکھانے کے لیے پیسے لیتے ہیں۔ وہ مردہ اسے ابھی بھی کھا رہے ہیں۔ خیر اپنی اپنی زندگی ہے،
تو فرعون کی لاش کو رکھا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تیرے جسم کو ویسے ہی رکھیں گے تاکہ تیرے بعد آنے والوں کے لیے عبرت بن جائے۔ لوگ اسے دیکھنے کے لیے اسے انٹرٹینمنٹ کے لیے دیکھنے جاتے ہیں۔ تمہیں معلوم نہیں اس پر کتنی لعنت برس رہی ہے، کیا کیا اس پر عذاب آتے ہیں۔ یہ فرعون کی لاش کو اگر کوئی دکھاتا ہے تو صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے، مذاق کے لیے نہیں، تفریح کے لیے نہیں، بلکہ عبرت حاصل کرو۔ ایک وقت تھا جب یہ کہتا تھا سب سے بڑا رب ہوں۔ آج ایسا سویا ہے کہ لوگ اسے جب سال میں ایک بار مسالہ لگاتے ہیں تو پیر سے، ہاتھوں سے، جس طرح سے بھی اس کے جسم کے ساتھ زندگی بھر بلکہ دنیا میں کئی ہزار سال گزر گئے، یہی ہو رہا ہے۔ عزیزو نگرانی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جس نے سر اٹھایا، مولا نے اس کے سر کو بھی بہت اچھی طرح سے فرمایا۔ آج گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ ظالم اس طرح سے سر اٹھاتے ہیں اسلام کے خلاف، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف، قرآن کے خلاف یا اہل ایمان کے خلاف۔ ان کی ممتا اللہ کے سپرد کر دو اے رب ذوالجلال۔ پھر سے کوئی فرعون آیا ہے اور اب سر اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ان کی ساری طاقتیں ایک ساتھ بھسم ہو کر رہ جائیں گی، پر شرط یہ ہے تاکہ رب تعالیٰ کے حضور اپنے ہاتھ تو پھیلا سکے۔ اللہ فرماتا ہے تم گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، تم سب سے بلند رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ دوسری جگہ آج ہی ہم نے پڑھا ہے قرآن میں 12ویں پارے میں مولا فرماتا ہے میں نے تو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ مدد کر کے تو صرف ایمان والوں کی مدد کرو۔ تمام برائیوں سے مولا کے حضور عرض کو تمہارے ہاتھ نیچے ہونے سے پہلے مولا غیب سے مدد نازل فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی زندگی عطا فرمائے، ایمان پر موت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔